सर अभी क्लास होगा? यस सर तो आप एक में 8 बजे लिख दिया है। 8 बजे शेड्यूल है बिकॉज ऑफ वी आर नॉट हैविंग टाइम ऑफ ईच branches. Okay, we are not finding any time so that every branch would be free. So that's why I have given 8 p.m. We'll have the basic electronics class in the night only. Okay. ओके सर। So that सर तो अभी होगा ना? हाँ अभी होगा। ठीक है सर। Everyone, if we are having इन्फॉर्म कर दो सारे लोग को। कोई बोल रहा है क्लास चल रहा है इलेक्ट्रिकल का। यस सर कर दी। Electrical people is asking that they are having class right now. Okay, let us start. So in the last class we were at color coding, right? And then we have Yes, gone sir. we have gone through the relay portion. Okay. So today we'll go and see. We'll start from the relay. Good afternoon, sir. Good afternoon. So we have discussed relay, okay, in the last class, that this is called as mechanical relay. Okay.
same thing we are doing with the solid state relay. Whatever function we are doing with the mechanical relay, same thing we are doing with the solid state relay. Although mechanical relay is used in industry in the large scale, okay, बहुत सारा मतलब लाखों में लगा रहता है if you count in one big industry, जो manufacturing industry है, okay. So in the solid state relay is generally used by a or made on the semiconductor devices. Only using the semiconductor devices. There are no mechanical parts in this, okay, in the solid state relay. Okay. Those who have not joined in the last class, they may face difficulty to have some understanding on this topic, okay. So have patience, go with the flow, then obviously if next topic will come, yeah, you all able to understand, okay. So in this relay we are not having the mechanical movement any part, okay. कोई mechanical movement नहीं है जो contact बना रहा है और ये हो रहा है. In this case only the flow of electron and not flow of the electron. These two scenario is going to make a contact or not contact. अगर फ्लो हो रहा है तो obviously contact बन जाएगा, अभी फ्लो नहीं होगा तो नहीं बनेगा, ओके. कोई डाउट है इसमें? No, okay. sir. This is the solid state relay, okay. In this section we are having input, from here you are having the output, okay. So this is the line and load. ऐसे current flow करेगा, कुछ भी आप इधर connect कर दोगे, suppose bulb connect करती है, okay. What will happen whenever this is going to be on, और ये इसका on होना इस voltage पे depend कर रहा है, ये gate पे. जब ये on होगा तो current ऐसे flow करेगा, जब on नहीं होगा तो current flow नहीं करेगा. That means whatever you have attached with this line is going to be off, okay. And now this voltage is going to control by this whole circuit, okay. This is called as the input circuit. अगर 5 वोल्ट से नीचे ये चला गया, इट्स डिपेंड अपॉन द रिले ना वोल्टेज, ओके. जनरली द रेंज इज फ्रॉम 3 वोल्ट टू 32 वोल्ट. इट्स डिपेंड अपॉन अस, हमको ये सेट करना है, ओके, कि मैं कितने वोल्टेज पे इसको ऑफ कर दूं और कितने वोल्टेज जब इधर आ जाएगा तो ऑन हो जाएगा, ओके. As soon as you give supply from here, okay, it's going to start acting. ये ऑन होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा, ये बल्ब जल जाएगा. जैसे इधर से पावर कट होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाएगा, ये सर्किट अभी काम नहीं करेगा, मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा, उस हिसाब से ये बंद हो जाएगा, ओके. ठीक है. Don't Yes, look sir. don't right now don't look at or try to understand these things, okay. voltage capacitor इतना ही ओम का क्यों लगा हुआ है, अभी आप उसको मत देखो, okay. just see the circuit, as simple as that. Just see the circuit, okay, and try to understand the function of relay, okay. Relay is what? A switch. Is kind of a switch that if we excite them from external source, then they will change their state of the switch. अगर वो close है तो open हो जाएगा और open है तो close हो जाएगा. That path only, okay. जैसे हम घर में ऐसे मतलब ताला लगाते हैं ना, एक बार गेट बंद हो गया तो अभी ना अंदर से कोई बाहर जाएगा ना बाहर से कोई अंदर आएगा. Same kind of thing is happening here, okay. That is controlled by here is what? कौन कंट्रोल कर रहा है हमारे लिए? ये है ना एक सॉलिड स्टेट स्विच है, ये जो आपको ये हम मेरे को कंट्रोल करके ये चीजें दे रहा है, ओके. यू विल स्टडी दिस आल्सो, ये कौन सा स्विच है,
ठीक है, खास सर ये करके लग रहा है कि डायक पता होगा ये कौन सा है, क्या है बाबू? सर ये लग रहा है कि सर ये डायक सर। डायक है कि ट्रायक है? सर इसमें गेट है तो तो ये सर होगा। बोलो। सर कंफ्यूज है थोड़ा सा। सर क्या क्वेश्चन क्या है सर? दिस इज डायक और ट्रायक, दिस सर्किट। सर ट्रायक सर। और कोई बोलेगा? चलो ये चैट बॉक्स में लिखो, ठीक है? ओपन योर चैट बॉक्स एंड प्लीज राइट ओवर देयर from your side that what is this, triac or drag? Okay, I am moving ahead. I will give my answer after some time. Okay, now so we have seen these two relays. Okay, first one was electromechanical relay, that in this case we have some mechanical movement, spring is there, lever is there. Okay, and one coil is mounted. Now if this coil is going to excited, then obviously ये मैग्नेट बन जाएगा और ये लोहे का पत्ती है तो ये डाउन होगा, खींचेगा इसको. ओके, सो these now these two small piece of iron is going to be going to be in contact. तो अभी क्या हो जाएगा, ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. यहाँ से सप्लाई है तो ऐसे होके ऐसे अभी जो भी यहाँ पे लोड लगा हुआ है वो काम करने लगेगा. It is going to start functioning. So now this closing and opening of this whole structure is going to be controlled by this coil. If we give supply, then this is going to be closed. If you remove the supply, again is going to be in open condition. So this is how this switch is going to work for us. Okay, depending upon our logic. Those who have been gone with the digital electronics, so you understand what is the meaning of logic. Okay, so depending upon our logic, one is going to come here. One means what? 1 और 0 आप जो डिजिटल में पढ़े हो उसका क्या मीनिंग है, कौन बोलेगा? सर सर, वन on मतलब ऑन, जीरो मतलब ऑफ. सर ऑन और ऑफ. Like if we see the function of at your home, ये 10 कहाँ हो रहा है बताओ तो? घर में जितने भी ऑपरेशन आप देख रहे हो सर, उसके ऊपर एक एग्जांपल दो. स्विच में होता है सर. ऑब्वियसली, राइट. जब आप फैन का स्विच को ऑन करते हो इसका क्या मीनिंग हो रहा है? मतलब वन ऑपरेशन ऑन हो रहा है. 1, right? And the voltage associated with this one is what now for the fan case? 220 वोल्ट, राइट? ये 5 वोल्ट भी हो सकता है. जैसा डिवाइस मेरा रहेगा उतना ही वोल्टेज देंगे हम चलने के लिए. अभी फैन 220 वोल्ट से चलता है, आप उसको 5 वोल्ट दोगे तो नहीं चलेगा ना. ओके, सो the voltage level of 1 and 0 is decided by us depending upon which system we are operating. ठीक है, अगर आप बल्ब ऑपरेट कर रहे हो, अगर वो डीसी बल्ब है तो हमको मेरे को 12 या 5 या 9 ऐसे चल जाएगा काम. बट इफ यू आर ऑपरेटिंग एसी बल्ब दैट वी हैव टू हैव दिस मच वोल्टेज, 220 वोल्ट. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे आप अगर आप ऐसा कंडीशन चाहते हो कि मेरा फैन भी चले और मेरा बल्ब चले, ये सब ऑन कंडीशन में रहे, तब मेरा किचन का बल्ब जले. एक लॉजिक बनाना पड़ेगा. आई हैव टू मेक दिस लॉजिक. ये 1 हो, ये 1 हो तो हमारा किचन का भी बल्ब जलना चाहिए, मतलब वहां पे वोल्टेज है. कौन सा लॉजिक करेंगे बताओ?
अगर हमारा इनपुट 1 है, आउटपुट मेरे को 1 चाहिए, तो कौन सा गेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा? सर एंड। ओके, और कोई? NAND। और कोई? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं सर? Suppose there is a condition, okay, I am taking example in house, okay, house का ही हम ले रहे हैं, ठीक है। एक मेरा जो हमारा सेंसर है, ओके, सेंसर छोड़ दो, मैं एक जस्ट सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। एक तुम्हारे किचन का एक बल्ब जल रहा है सपोज, ओके, बल्ब जल रहा है मतलब 1 कंडीशन है, ओके, और एक फैन चल रहा है तुम्हारे बेडरूम में, ओके, ये 1 कंडीशन है। ऑन है मतलब 1 कंडीशन, चल रहा है मतलब 1 है, ओके। अगर ये दोनों 1 होता है मतलब किचन का बल्ब और मेरा एक रूम का फैन अगर चले, तो मेरा जो मोटर है वो ऑन होना चाहिए, जो हमारा मोटर घर में लगा है वो ऑन होना चाहिए। एक कंडीशन में ये एराइज किया, ओके। तो अभी कैसे ये करोगे और इस लॉजिक को कैसे इंप्लीमेंट करोगे? सर एंड लॉजिक यूज करके। और कोई? सर एंड या फिर और भी कर सकते हैं। और कोई? okay, so obviously and is going to solve this problem, okay। and क्या होता है ना, ये and गेट था, okay। तो अभी अगर ये 1 रहेगा और ये 0 रहेगा, the output of this and gate is going to be 0, right, है ना। अगर ये Yes, sir. जब तक दोनों 1 नहीं होगा तब तक ये 1 नहीं होगा, है ना। और ये जो 1 आया इसी का आउटपुट को हम इधर जोड़ देंगे। अब ये तभी चलेगा ये, क्योंकि ये जो आपका गेट है ना, ये 5 वोल्ट आउटपुट देता है, तो डायरेक्ट तो आप मोटर में दे नहीं सकते, तो अभी क्या करोगे? हाँ, मोटर तो चलेगा 220 वोल्ट से अगर सिंगल फेज है तो। लॉजिक तो बन गया, लेकिन ये जो गेट का आउटपुट है, जनरली जो आप डिजिटल आईसी देखे होंगे, जो गेट का आउटपुट आएगा 5 वोल्ट आएगा, राइट और रॉन्ग? तो कैसे चलेगा? तब ये काम आएगा आपका, देखो ये, ओके, वो 5 वोल्ट से ही ऑपरेट हो जाएगा ये सर्किट, ठीक है। नाउ दिस दैट 5 वोल्ट विल कम हियर और ये ऑन हो जाएगा, और इधर आप ये जो इसी लाइन में आप मोटर को कनेक्शन करके रखें, सपोज ये मोटर है, ओके, एम लिख देते हैं। अब ये जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज आएगा, ऑब्वियसली ये ऑन होगा और ये ऑन हो जाएगा। ये इधर नहीं आएगा मतलब ये ऑफ रहेगा और ये नहीं चलेगा, ये डिस्कनेक्टेड रहेगा इस सर्किट से। गॉट माय पॉइंट? किसी को समझ में मतलब ऐसा है कि जो नहीं आया हो? बोलो। सब चुप है, क्या हुआ जी? आ गया सर, नेक्स्ट टॉपिक। समझ गए सर। ओके, next topic is light dependent resistor, okay, these all are from the module 1 only, ठीक है। now what is this is also called as light dependent resistor, okay। सुनने से ही लग रहा है light dependent, that means this resistor is what, when you are having some electromagnetic radiation on that, means on the top of that, the resistance of this
is going to be changed. That means this is light sensitive. Okay, जैसे ही हम इसको लेके जाएंगे लाइट के ऊपर या इस पे लाइट देंगे, ओके, देन व्हाट इज हैपनिंग, बोलो, रजिस्टर क्या होगा, चेंज हो जाएगा. नाउ इट डिपेंड अपॉन द कंस्ट्रक्शन कि वो घटेगा कि बढ़ेगा. रजिस्टर जो भी है, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो घटेगा कि बढ़ेगा, इट डिपेंड अपॉन द कंस्ट्रक्शन. आप देखो ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट कभी जैसे ही लाइट मतलब जैसे ही शाम हो जाता है ऑटोमेटिकली सारे स्ट्रीट लाइट ऑन हो जाते. हैव यू सीन दिस? Yes, sir. Yes, sir. So using this sensor only or using this device, that light dependent resistor, this whole operation is going to function. जैसे इस पे लाइट आएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा. तो क्या होगा, अब ये सर्किट को करंट फ्लो होने से ब्लॉक कर देगा. दिन हो गया, इसका रेजिस्टेंस इस पाथ का हाई हो गया, तो क्या होगा, अपने आप कट जाएगा. ओके, मेन लाइन से इसका कनेक्शन ही कट जाएगा पावर का. ओके, सर जब मौसम खराब हो जाएगा, जब बरसात वाली मौसम होगी तो देयर इज नो लाइट, तो ये ऑटोमेटिक फिर तो सर दिन में भी जल जाएगा ना? हाँ ऑब्वियसली, स्ट्रीट लाइट. सिंपल बात है कि लाइट कम होने से जलो. अगर दिन में लाइट कम हो गया तो जल ही जाना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? तो सर करंट का वेस्टेज हो जाएगा फिर ना? कैसे वेस्टेज हो चलता जाएगा? कुछ सोलर सेल से तो अगर लाइट wastage कम होगा. है, दिख नहीं रहा, एक्सीडेंट हो सकता है ना. ये भी बात है. Don't think on loss and wastage right now. Okay, just think the technology. We are not going in the main application part. This also is going to be removed if we add some microprocessor. So many things are there. Okay, कि आपको नहीं जलना, लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी, ऐसा तो नहीं है ये. दिस इज हाउ वी आर मेकिंग ऑटोमेटिक. नाउ इफ यू वांट टू डू प्रिसाइज कंट्रोल कि इतना लाइट से ही डिम होगा तो ही बंद होना चाहिए, देन यू कैन ऐड सो मेनी सर्किट एंड देन दिस इज पॉसिबल आल्सो. समझ रहे हो? यस सर. इसमें और भी वोल्टेज का लेबल या सपोज इसको कैसे करोगे कि तुम धूप में रखो, इसको एकदम सुबह सुबह रखो, उसमें कितना रेजिस्टेंस आ रहा है नोट डाउन कर लो. फिर दोपहर में रखो, फिर उसको नोट डाउन कर लो. फिर शाम को रखो, उसको नोट डाउन कर लो. फिर बहुत बारिश हो रहा है, एकदम क्लाउडी है, उसमें क्या रेजिस्टेंस आ रहा है उसको रख लो. ठीक है. नाउ दीज केसेस यू टेक एंड मेक सर्किट अकॉर्डिंग. इट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू. समझे? इट्स अप टू अस कि क्या कंडीशन में हमको जलाना है, क्या कंडीशन में नहीं जलाना. ठीक है. लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर वही है, अगर इस पे लाइट पड़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा. ये सेंसिटिव है लाइट के लिए. ओके, एज सिंपल एज दैट. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And they are also made up with the semiconductor material only. Okay, ये semiconductor material से बनाया जाता है. कंस्ट्रक्शन सेम जैसा हम फोटो सेल बनाते हैं ना, वैसा ही है. ठीक है. एवरीथिंग व्हाट वी हैव डिस्कस इज रिटन हियर ओनली. वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा देख लेने का है. सेम चीज. ओके, this is the mouse. One second. This is the construction of your photo cell. Okay, or photo resistor or LDR, सब same है. Okay, light dependent resistor. This is the what, resistance versus illumination, और जो लाइट का इंटेंसिटी है उसके लिए ये ग्राफ है उसके बीच का. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. If you see
when the illumination is increasing, your resistance is going to be decrease. ठीक है, डार्क में बहुत हाई है रेजिस्टेंस, जैसे जैसे सनलाइट आएगा तो बहुत कम होते जाएगा. Got the point? ये दो तरह का भी होता है, मतलब एक ऐसा होगा जो लाइट में कम रहेगा. ठीक है, लाइट बहुत है, लाइट अगर नहीं है तो कम रहेगा, लाइट अगर आ गया तो ज्यादा हो जाएगा, ऐसा ग्राफ हो जाएगा. What the point? We'll study the main semiconductor, तो इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, ये कैसे कंस्ट्रक्शन होता है. इट्स वेरी सिंपल. एक स्ट्रक्चर ले लेंगे, ये बहुत जरूरी है. ओके, कि फैब्रिकेशन कैसे होता है ये सब. विल सी ऑल्सो, आपके सिलेबस में नहीं है ये चीज पढ़ना, बट वंस यू नो कि हाउ ये फैब्रिकेट कैसे होता है, तो आप बहुत आसानी से इसको लिख सकते हो, सोच सकते हो. ओके, ये क्लियर हो जाएगा पिक्चर आपके सामने से. ठीक है, कोई भी एक मटेरियल लेंगे, है ना, सिलिकॉन जैसे आप ले लिए, अभी इसमें डोपिंग करेंगे ऑब्वियसली, तभी ये बने. देखो ये रीजन N- है, N+. ओके, कैसे बनेगा, तो पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी से डोपिंग करेंगे. डोपिंग करने का भी एक तरीका है. ओके, तो कितना इसका हाइट होना चाहिए, कितना डोपिंग होगा, सो मेनी थिंग्स आर देयर, वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग इज देयर इनसाइड. इतना आसान नहीं है. इंडिया में अभी तक हम लोग सेमीकंडक्टर फैब्रिकेट नहीं कर पाए. ओके, वी आर ओनली मेकिंग, इंपोर्टिंग, कुछ भी है इंपोर्ट कर लो. हम बना नहीं पाए अभी तक, हमारे यहाँ लैब ही नहीं है जो सेमीकंडक्टर, जो एक्चुअल में जिस पे डिवाइस बनता है, जिस पे ट्रांजिस्टर बनता है, वो हम नहीं बना पा रहे अभी. बल्क में हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते. रिसर्च पर्पज से कुछ IITs में है. ओके, सर इसका एप्लीकेशन है अलार्म क्लॉक. अलार्म क्लॉक में कैसे यूज होता है सर? अलार्म क्लॉक मैंने हम लोग जो यूज घर में यूज करते हैं वो क्लॉक क्या? हाँ, अरे बाबू सिंपल सा है. देखो ये क्या है, एक रजिस्टर है जो लाइट पे डिपेंडेंट है. अब जहां जहां ऐसा केस आएगा तुम यूज कर लो, उसमें क्या दिक्कत है. तो सर रूम अलार्म अलार्म क्लॉक क्लॉक तो रूम के मतलब क्या, अंदर तुम अगर सुबह सुबह तुमको 6 बजे और रात का जैसे होता है ना, सुबह हमको मॉर्निंग में उठना है, तुम उस सेंसिटिविटी के साथ सेट कर दो कि 5 बजे जो इंटेंसिटी या तुम्हारा लाइट आता है उस पे कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग सर्किट बना लो. तो अलार्म क्लॉक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन तो जाएगा सर, लेकिन अगर रूम क्या रूम? हाँ सही है सर. अरे फिर वही तुम उसको लेके कहाँ चले जा रहे हो, एकदम लाइट और इसके साथ एकदम जोड़ी दे रहे हो. हम क्या कह रहे हैं कि 3 बजे और 4 बजे एकदम अलार्म क्लॉक, वो अलार्म क्लॉक नहीं होगा जो आपके घड़ी में आ रहा है. ठीक है, अलार्म क्लॉक कहने का मतलब हो गया, सपोज तुम जेल में हो. ठीक, यस सर. अभी वो लोग चाहते हैं कि नहीं 5 बजे हमारा ये अलार्म बजना चाहिए. ठीक है, उनका वो डेली का रूटीन है, उनको चेंज नहीं होना, 5 से 6 नहीं होना. तो वो एक सिस्टम ऐसा बनाएंगे जो बार बार हमको सेट ना करना पड़े, बार बार अपने रिसेट ना हो जाए, लगा के छोड़ यस सर. दिए, जैसे ये 365 दिन 5 बजे बजता रहे. जैसे यहाँ बर्जर अलार्म सर्किट प्लांट में भी लग सकता है सर, जो कि हाँ, रात होने पे रात का शिफ्ट को बताए. यस सर. दीज आर द एप्लीकेशन तुम लिमिट नहीं कर सकते हो किसी भी डिवाइसेस का. ओके, व्हाट वी आर डूइंग इज जस्ट मेकिंग so many applications with the so many devices available. अभी जो हमारे रिसर्च और जो भी चलते हैं या इंजीनियरिंग में जो भी काम हो रहा है, हम क्या करते हैं, जस्ट एप्लीकेशन ही तो कर रहे हैं. यस कुछ सर. नया आविष्कार हो रहा है क्या? सर थ्योरी वही है, बस उस पे एप्लीकेशन बनते जा रहे हैं. हाँ, just you have to understand the theory
उसके बाद अपने हिसाब से आप लाख एप्लीकेशन बना सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। यस सर। ओके ठीक है, विल डिस्कस द फैब्रिकेशन आल्सो इन द कमिंग क्लासेस। ठीक है, सिलेबस में ये चीजें नहीं है कि फैब्रिकेट कैसे करना, बिकॉज इट टेक टाइम। ओके बट व्हाट आई फील कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैब्रिकेशन। जैसे अगर घर बनते देख लोगे कि हाँ घर कैसे तो बनता है, कैसे फैब्रिकेशन मतलब फैब्रिकेशन मतलब ये डिवाइस कैसे फैब्रिकेट हो रहा है। जैसे कहने का मतलब है कि आप एक सपोज किसी चीज का सब्जी बनाते हो, तुमको पता होना चाहिए, हम सब्जी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सबको इसके बारे में भी जानते हैं, तो सब्जी कैसे बन के रेडी हुआ वो हम खा लेंगे तो उसका टेस्ट पता चलेगा, लेकिन इसके पीछे वो पहले खेत में था, खेत से एक दुकानदार के पास आया, वहां से तुम परचेज करके लाए, फिर उसके काटे, उसमें मसाला मिक्स किए, फिर ये अभी ये सब्जी बन के तैयार हुआ। तो जो आप देख रहे हो ये तैयार चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके नाउ ये कैसे बना, मतलब सब्जी Yes. कैसे उगा, तो पहले खेत में वो खुद मतलब क्या बोलते हैं उसको, साफ करके उसको थोड़ा क्या बोलेंगे उसको, थोड़ा फर्टिलाइजर। वड्डा करके, हाँ फर्टिलाइजर डाल के उसको रेडी करेंगे। उसके बाद उसमें वो सब्जी का बीज या पेड़ जो भी आएगा उसको हम फिर वो अकॉर्डिंग टू टाइम, कितना टाइम लेके ही वो, ऐसा तो नहीं आज आलू डाले कल आ जाएगा, कुछ भी कर लो ऐसा होगा क्या। No, sir. No, So sir. there is a set of rule, some process is there for everything. Okay, उसके accordingly ही we have to work. So for making a semiconductor devices there is a fabrication process, हमको उसको follow करके ही आपके पास ये जो छोटे छोटे डिवाइसेस आ रहे हैं ये आप देख पाओगे या आप बना पाओगे। ओके तो कुछ लिमिटेशन है इंडिया Yes, के sir. पास, इसीलिए वी आर नॉट मेकिंग दिस। चाइना बना लेता है। सर आप बोले कि इंडिया में मतलब सेमीकंडक्टर बनता ही नहीं है। नहीं, कोई कंपनी का नाम बताओ जिस जो सेमीकंडक्टर बनाता नो सर, हम आपसे पूछ रहे थे, हमको नहीं पता। है। नहीं बना पाते। तो बैंगलोर में कुछ कंपनीज है ना सर, तो सिलिकॉन सिटी क्यों बोला जाता है उसको, नहीं सिलिकॉन बनता है तो? सिलिकॉन सिटी, अब नाम तुम कुछ भी दे दो, पैदा हुआ सपोज कोई नाम दे दो राम, तो राम हो जाएगा। बताओ। नो सर। अरे तुमको अच्छा लग सही गया, बात वहां है। का राजनेता का अच्छा लग गया, वो दे दिया सिलिकॉन सिटी। सिलिकॉन सिटी जस्ट इज what we are replicating what silicon city is available in the UK or US। तो अभी हम जस्ट क्या बोलते हैं मोटिवेशन के लिए हम उसका नाम रखे, सो दैट इन द जब हम ऐसा कर पाए लाइफ या आगे चल के 10 साल 15 साल में, इसके लिए एक मोटिवेशन हो या एक प्लेस वो लोग क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे रिसर्च, जहाँ पे नई नई कंपनी आके उनको सारा सुविधा वहां पे मिले, है ना, सारा प्रोसेस हो जाए बहुत आसानी से, उनको जमीन मिल जाए बहुत आसानी से, राइट, इट्स नॉट दैट मच इजी। समझ गए? यस सर। तुम्हारा नाम क्या है, कौन चाइना क्वेश्चन पूछा था मैं से? सर प्रशांत। हाँ बताओ प्रशांत, तुम्हारा नाम प्रशांत क्यों है? तुम सागर हो, महासागर हो? यस। नो सर। महासागर हो क्या? नो सर। फिर नाम कैसे दे दिए? आपका कोई कंट्रोल है क्या नामकरण पे? नो सर। अभी आपको पसंद भी नहीं तब भी रखना होगा, है ना? यस सर। इन देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड दैट कि क्यों नाम पड़ा। ओके हाँ, जैसे कि अब मैं कोई मिसाइल बना रहा है, ठीक, इंडिया सबका नाम हमारे मैथोलॉजिकल यूज करके दे रहा है, क्यों दे रहा है?
कोई ब्रह्मोस दे रहा है, कोई ड्रोन, सर सैटेलाइट का कुछ ऐसा नाम दे रहे जो कि हमको मोटिवेट करे। इट्स लाइक दैट ओनली, ये कोई उसमें लॉजिक नहीं है। और हाँ, अभी हम लोग बिल्ड नहीं कर पा रहे सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर बिल्ड करने का मतलब जो मैं अभी एग्जांपल दिया कि सब्जी कहाँ से कैसे बन, आधा बन सब्जी उग के आ गया तब तो कोई भी पका लेगा। अभी आपको बोल दिया जाए नहीं, सब्जी ऐसे नहीं मैं खाऊंगा, पहले उसको उगाओ, उसके बाद उसका सब्जी मैं खाऊंगा, लेकिन आपके पास, दैट इज वाई वी आर वेरी वेरी वेरी, क्या बोलेंगे उस टर्मिनोलॉजी, बहुत हम लोग बैकवर्ड है अभी टेक्नोलॉजी के मामले में, कुछ नहीं है हमारे पास। आप कुछ भी चीजें देखो उठा के, जो टेक्नोलॉजी में है वो हम नहीं बनाए, या हमारा देश नहीं उसको बना पाया। सारा चाइना से आता है सर। यस, वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम चाइना। बिकॉज वहाँ का मेन पावर सस्ता है सर, तो वहाँ पे बल्क प्रोडक्शन किया जाता है। पावर बल्क प्रोडक्शन यहाँ भी हो सकता है, पावर सस्ता का नहीं है। वी आर नॉट लुकिंग एट फ्यूचर। हम नो अगर सर, तुमको बाबू एक जॉब दे दिया जाए, तुम रिसर्च करोगे? तुमको लगे नहीं नहीं हमको ये सब जरूरत नहीं, हमको पैसा चाहिए बस। मगर वो सर चाइना में, मोटिवेशन, वो इंजीनियरिंग में एडवांसमेंट, वो विजन हमारे गवर्नमेंट के पास नहीं है कि 10 साल में हमारे देश को क्या चाहिए। जब आप खुद सोचो, जब आप घर में हो, आप सिंपल एक लॉजिक समझ लो कि आप घर में हो, आपके पेरेंट के पास अगर वो विजन नहीं रहेगा, सपोज वो अभी कुछ नहीं, सपोज किसी के पेरेंट कुछ नहीं कमा पा रहे, एकदम जीरो उनका अर्निंग है, उनका एक लड़का पैदा हो, अभी अगर उसके लिए 10 साल बाद तो वो पढ़ने जाएगा, उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आज से वो नहीं सोचेंगे कि मेरा 10 साल के बाद अगर ये बच्चा पढ़ने के लिए पैसे मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगा, उसके लिए वो मेहनत या वो अपना प्लान नहीं करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। और किसी के पास पहले से है। अगर आज आप अपने कैरियर के लिए प्लान नहीं करते हो तो 10 साल बाद तुम भी फेल कर जाओगे। सर इंडिया इतना टेक्नोलॉजी के पीछे मैंने इंडिया में इतना टेक्नोलॉजी इतना पीछे चल रहा है, इसका एक मेन मुद्दा सर ये नहीं हो सकता है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, यहाँ पर हाँ, ये चीजों पे ज्यादा ध्यान। दैट इज वाई व्हाट आई सेड, गवर्नमेंट के पास Yes, या sir. हम लोग जो भी जिसके साथ रह रहे हैं, इसका विजन नहीं है। अगर कुछ चेंज भी करने का कोशिश किया जाएगा तो चेंज नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों ने ट्राई जरूर किया होगा, बट टिल नाउ वी आर नॉट getting the benefit of any change that has been implemented. दो रीजन है सर इसके पीछे हमको लगता है सर, एक ब्रेन ड्रेन होता है सर, और दूसरा रिसोर्स का कमी। हाँ, जितने भी अच्छे तो इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स होते हैं सर, वो रिसोर्स तो बाहर चले गवर्नमेंट जाते ही हैं देगा सर, ना। अपने कंट्रीज को छोड़ के। रिसोर्स तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बाहर हाँ सर, बाहर चले जाते हैं। अच्छा, तुमको फिर पैसा ही चाहिए, यहाँ पे रह के क्यों नहीं सेट? जब आपको पता है कि मेरा घर खराब है तो हम घर ठीक करने के बजाय दूसरे घर में जाके बैठ गए, तो ऐसे तो चेंज कभी होगा तो नहीं। हाँ सर, वो रिसोर्सेज की कमी से, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो रिसोर्स लगते हैं वो इंडिया में तो ये एफर्ट नहीं कौन कर करेगा? पाते, ये तो मतलब गवर्नमेंट पर्याप्त ही है। मात्रा में नहीं है। तो गवर्नमेंट ही करेगा ना, कौन कर देगा? यस सर। If you invest some money in the science, then this is possible ना। साइंस का बजट में एकदम आता है कम, तो बिजली फ्री, पानी फ्री चाहिए, तो फिर कहाँ से साइंस बनेगी? तो हम लोग स्ट्रगल करते हैं डे टू डे लाइफ में। यहाँ का 70-80% पॉपुलेशन जो है, जो डे डे अभी खत्म हो जाएगा, फिर ज्वाइन करना है, ठीक है, सेम लिंक के साथ।
तो हमारा डे टू डे लाइफ के लिए ही 70% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो खाली पेट से तो नहीं